he's holding a roadshow in Bhopal, Madhya Pradesh currently. Meanwhile, civil defence drills are set to take place across Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Chandigarh and Jammu and Kashmir under Operation Shield, following a nationwide exercise conducted on 7th May amid India-Pakistan tensions. These drills follow the directive issued by the Home Ministry following the Pahalgam terror attack. Earlier, the mock drills were scheduled to be held in the bordering states and union territories on May 29th. However, they were postponed due to administrative reasons. Complete blackout measures would be implemented in adjoining civilian vulnerable areas and vulnerable points in Punjab, excluding emergency and critical services, and air raid sirens would be sounded. In Amritsar, the mock drill is set to take place from 6 p.m. to 7 p.m, while blackout is to be undertaken from 8 p.m. to 9 p.m. The city, villages and airport are to be under complete blackout, with the blackout set to last for 30 minutes. On the other hand, the Haryana government has said that it will conduct the mock drills across all 22 districts to enhance the state's emergency preparedness and response capabilities. Officials have said that the exercise will begin at 5 p.m. and the drills will simulate critical incidents such as air raids, drone attacks and other wartime scenarios. Additionally, a controlled blackout of 15 minutes will be observed from 8 p.m. to 8:15 p.m. near vital installations in Haryana, with the exception of essential emergency services such as hospitals, fire stations and police stations. Officials have said that mock drills and blackout exercises under Operation Shield are scheduled to be held across all 41 districts of Rajasthan as well. The chief secretaries have directed preparations for 7 different scenarios, including the general or silent recall of civil defence volunteers and other groups such as the National Cadet Corps, air raids by enemy aircrafts, drone and missile attacks and activation of hotlines between Air Force and civil defence control rooms. Meanwhile, my colleague Mahendra Singh Rathore has filed a ground report. Let's have a look. पहलगांव की आतंकी घटना का बदला लेते हुए हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद जो है युद्ध जैसी स्थिति हुई थी और उसमें सीज फायर के अंतिम निर्णय के बाद हमारी भारतीय सेना जो है उन्होंने जो है एक बार फिर ये साबित कर दिया था कि हम हर कदम पर लड़ने के लिए तैयार है। आज एक बार फिर मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ है और मॉक ड्रिल ऐलान होने के बाद हमारे सीमांत जिला बाड़मेर में मैं खड़ा हूँ और वहाँ से आपको बताना चाहूँगा कि सीमांत पर बसे हुए जो बासिंदे हैं उनके अंदर अगर मॉक ड्रिल के बाद एक बार फिर युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो उसको लेकर ये लोग कितने तैयार है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू चारण है। मैं भारतीय सेना के जज्बे को सलाम करता हूं और इन्होंने इस बार जो पाकिस्तान को नाकौ चने चबाए है, इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। पिछले हमारे 4 युद्ध हुए थे, उन 4 युद्धों के अंदर पाकिस्तान की सेना को नेस्तनाबूद कर दिया था। हमें बहुत खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा कामकाज करते हैं। भारतीय सेना के पास में बहुत सारी आधुनिक कई हाईटेक प्रणाली के साधन हैं। वो पाकिस्तान के अंदर क्या है क्या नहीं वो सब पूरी दुनिया को मालूम है। अगर वो 2-4 दिन और मोदी जी ने छुट्टी दी होती तो पाकिस्तान वाले तो आज हमारे यहाँ यूँ ही आटा ले के लिए आ जाते। लेकिन काश क्या किया जाए, प्रधानमंत्री जी भी कुछ मजबूरियाँ होगी। इंडियन आर्मी है, मैं मानता हूँ कि बाड़मेर जैसलमेर के जो लोग हैं उन्होंने तनोट माता की कृपा से बहुत अच्छा कामकाज किया था और आगे भी भारतीय सेना बहुत अच्छा कामकाज करेगी। और बाड़मेर जैसलमेर के जो लोग हैं अगर वो एक मुश्त होकर अगर वो धार दे दे तो पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। वो पानी वानी नदियाँ वदियाँ छोड़ो, पाकिस्तान वाले तो बस अब कोई कहने वाली बात नहीं है। कश्मीर जाने की ज़रूरत है नहीं, इंदिरा गांधी नहर चाहिए। एक साइड में बॉर्डर लाइन पे खड़े हो जाओ और 20 मिनट के अंदर पाकिस्तान के अंदर बाढ़ ही बाढ़ शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आपका हौसला बिल्कुल बुलंद है और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि सीमा पर बसा हुआ बाड़मेर और मॉक ड्रिल के बाद एक बार फिर युद्ध की थोड़ी बहुत आशंका रहती है, कहीं तनाव डर नज़र आ रहा है? अरे भाई, डर कैसा होगा जब ज़िंदगी रुतबे से गुजारी है, आगे भी रुतबे से गुजारेंगे। पाकिस्तान के पास में है क्या? जिसके पास में खाने के पैसे नहीं है, जिसके पास आटा नहीं है, पेट्रोल नहीं है, उनके पास में पुदीना क्या है जो हिंदुस्तान से मुकाबला करे? उन लोगों वहाँ के जो लोगों के जो वीडियो सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल होते हैं, उन वीडियो के अंदर उनके कार्टूनिस्ट देख के हिंदुस्तान की जनता है वो खुश होती है कि कम से कम हमारे यहाँ तो इतनी बुरी हालत नहीं है। उनकी दयनीय कंडीशनें हैं। वो तो पड़ोसी देश जो है वो औरों का गुलाम है, यहाँ पे कोई गुलाम नहीं है, सब अपने जज्बे पे है। इंडियन आर्मी जो है उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर तैयार रहती है। बीएसएफ
बहुत अच्छा कामकाज करती है। भारतीय रेल उनको बहुत अच्छा सहयोग देती है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल, देखिए राजू जी हमारे साथ थे, इनका जो हौसला और जोश जो है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर है। सुमेर जी, मॉक ड्रिल का ऐलान हो गया है, एक बार फिर देश में युद्ध जैसी स्थिति हो सकती है, सीमांत के बाशिंदों के अंदर कैसा? सीमांत के वासी इस पर्व को मनाने के लिए तैयार है। आप यकीन नहीं करोगे महेंद्र जी, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी किसी जनता के लिए कि सबसे बड़ा क्रेडिट तो सेना को है। सेना के लिए कहते हैं ना, किसी ने कहा कि मैं स्वर्ग का मंजर इस अपनी आंखों से देख आया हूँ, मैं किसी सैनिक का हंसता हुआ चेहरा देख के आया हूँ। तो वो सेना का एक शौर्य, सेना का पराक्रम निस्संदेह रूप से हमारे भारत के लिए गर्व और गौरव का विषय है। शासन को इस समय क्रेडिट देना बिल्कुल बनता है, क्योंकि सत्ता उस पूरे माहौल का केंद्र सत्ता है। अब सत्ता ने कितनी आज़ादी दे रखी, सेना पे कितना विश्वास है, इस बात को इस पे मान सकते हो। आपने देखा होगा जैसे ये जो हमारा पिछला दौर था जिसमें ये अपना जो सायरन बज रहे थे, जैसे ही शाम को ब्लैकआउट का टाइम था, आप यकीन नहीं करोगे आस पड़ोस के बच्चे लाइटें बंद करके सीधे छतों पे आते थे। ये पहली बार हो रहा है। युद्धों की कंडीशन में लोग मतलब बाहर निकलना घर से पसंद नहीं कर रहे, यहाँ सारे के सारे लोग छत पे आते और देखते ड्रोन कैसे जा रहे हैं, जैसे शादी की शूटिंग हो रही हो। इनके लिए उत्सव से ज़्यादा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की औकात हमें अच्छे से पता है। Meanwhile, Delhi Chief Minister Rekha Gupta is presenting her 100-day report card. Let's